Hi, this is the story of two tribals from Dantewada in Chhattisgarh. The story of an aunt and a nephew called Soni Sori and Linga Kodupi. It's a very urgent story, not just because it involves two individuals, but in many ways it encapsulates the complex conflict that is still going on in Chhattisgarh below the radar of national media. Ever since talk about Operation Green Hunt went down, media attention on Chhattisgarh has also become a bit lax. But away from our glare, away from our attention, many personal tragedies are continuing. The story of Soni Sori and Linga Kodupi is the story of tribals caught between the forces of the Indian state on one side and Maoist forces on the other side. I'm very quickly going to tell you a little bit about them, and then Himanshu Kumar, who has been an activist in Chhattisgarh, will tell the story in greater detail. Linga Kodupi was a very young and enthusiastic and intelligent, fearless young man. The police forces wanted to turn him into an informer against the Maoists. He refused and he was kept in jail for 40 days. When Himanshu Kumar put in an habeas corpus in the Chhattisgarh High Court, he was given bail and he was brought out. The police continued to harass him till at one point he came away to Delhi and he studied as a journalist here for several months under the patronage of Himanshu Kumar. Earlier this year, there was a terrible massacre and burning in 3 villages of Chhattisgarh. Linga Kodupi, who was trained to be a journalist, went back to Chhattisgarh and took footage of these 3 villages, first-hand accounts of victims and of the way the huts, 300 huts had been burned down by SPOs. This is the same village where Swami Agnivesh had tried to take a team of fact-finders and was pushed back by SPOs, was assaulted by stones. Even the ASP of the region had been attacked. It now appears that the fact that Linga Kodupi has this footage has really frightened the police forces in the state. Their harassment of Linga and his aunt Soni Sori, who is a teacher at a government ashram in Chhattisgarh, has gone up exponentially. About a few weeks ago, one of the police constables in Dantewada asked Soni Sori and Linga to pose as Maoists to receive a bribe money from a SR contractor called BK Lala. When Kodupi and his aunt refused, this constable forcibly used Sori's phone to make a call to Lala. Subsequently, they put both Kodupi and Lala were arrested from their houses. But the police said that they had caught them red-handed in the market exchanging 15 lakhs. Kodupi now is in jail, but Soni Sori has been forced to run away and take refuge elsewhere. Talking from an undisclosed location, she called back this constable, a man called Mankar, and asked him what was the truth of the story. This phone call was recorded, we have it on camera, and Mankar is there on the phone admitting to the fact that Kodupi was arrested from his house, Lala was arrested from this house, and this entire event was really something set up and staged by the police. He also is heard telling Sori to stay away because there is no evidence and things will soon fall back into place. Sori in the meantime is on the run. She has 3 children in a hostel, one as young as 5 years old. She is accused of being a Maoist. There are 7 cases the police have filed against her. The irony is that the Maoists think that they are informers and a few months back had attacked her father's house and shot him. Her father is now in hospital for having been attacked by the Maoists, and her husband is in jail by the police because he is suspected to be a Maoist, and Soni Sori is on the run. This story of one family is a kind of allegory of what is happening in Chhattisgarh. The police are repeatedly trying to chase away anybody who can stand up and speak so that stories of what is happening on the ground does not reach the metros. Do hear this account and come to your own conclusions. Thanks.
लिंगा एक ट्राइबल जर्नलिस्ट है और उसके ऊपर अटैक इसलिए हो रहा है क्योंकि वो एक ऐसे एरिया में रिपोर्ट करना चाहता है जो कॉरपोरेट्स जिस एरिया में रिसोर्सेज को छीनना चाहते हैं ट्राइबल्स के, और उस एरिया में एक वॉर है और उस वॉर में सरकार नहीं चाहती है कि कोई भी जर्नलिस्ट वहाँ से रिपोर्ट करे। लिंगा बस्तर का पहला ट्राइबल जर्नलिस्ट है जो वहाँ के ट्राइबल्स की ज़ुबान समझता है, जो ट्राइबल्स के पेन को समझता है, जिसने उस पेन को एक्सपीरियंस किया है, वो पहला जर्नलिस्ट है। इसलिए उसे अभी सरकार ने एक फेक केस में, एक फ़र्ज़ी मामले में फंसाकर जेल में डाल दिया है। दंतेवाड़ा में अभी हालत ये है कि कोई भी जवान लड़का या लड़की गांव में अगर है तो उसे पुलिस पकड़ लेती है और वो उस पर इल्ज़ाम लगाती है कि तुम गांव में रहते हो तो तुम ज़रूर नक्सलाइट्स के लिए काम करते होगे, और अगर तुम नहीं करते हो तो तुम फिर हमारे लिए काम करो। ये सिद्ध करने के लिए कि तुम नक्सलाइट्स के साथ नहीं हो, तुम्हें पुलिस का एसपीओ बन जाना चाहिए या इन्फॉर्मर बनना चाहिए। इसलिए पुलिस ने लिंगा को भी ज़बरदस्ती उसके घर से टीवी देखते हुए एक दिन रात में 10 बजे उठाया और एसपी अमरेश मिश्रा अपनी गाड़ी में कुआकोंडा थाने में से इसको डालकर दंतेवाड़ा लेकर आए और इसको 40 दिन तक दंतेवाड़ा थाने के टॉयलेट में थोड़ा सा खाना देते थे, भूखा रहता था। 40 दिन तक इसको टॉयलेट में बंद करके रखा, इसको प्रेशराइज़ किया कि तुम एसपीओ बनो, हमारे इन्फॉर्मर बनो। और फिर हम लोगों ने हैबियस कॉर्पस डाला। इनकी एक बुआ हैं सोनी सोरी, उनको मैंने पढ़ाया है, एक एनजीओ में वो पढ़ी हैं। वो मेरे पास आई हेल्प के लिए कि लिंगा कोड़ोपी मेरा भतीजा है और उसको पुलिस ने ज़बरदस्ती कोर्ट में थाने में बंद कर दिया है और उसको छोड़ नहीं रहे हैं। तो हमने कोर्ट में हैबियस कॉर्पस डालने के लिए कहा, हैबियस कॉर्पस डाला गया। हैबियस कॉर्पस में कोर्ट के नोटिस पर पुलिस ने जवाब दिया कि नहीं, हमने उसको अरेस्ट नहीं किया है, वो तो एसपीओ है, ये देखिए उसका सिग्नेचर। जब कोर्ट में लिंगा पेश हुआ तो लिंगा ने कहा मैं घर जाना चाहता हूँ, मैं एसपीओ नहीं बनना चाहता। कोर्ट ने कहा कि इसको घर जाने दीजिए। जब वो घर जा रहे थे, लिंगा को पता था मुझे ये घर तक नहीं पहुँचने देंगे, क्योंकि उस समय वहाँ के जो डीआईजी कल्लूरी थे और एसपी अमरेश मिश्रा थे, उन्होंने लिंगा को कहा था कि अगर तुम कोर्ट से छूट भी जाओगे तो हम तुम्हें गोली से उड़ा देंगे या किसी केस में फंसा के फिर से जेल में डाल देंगे। तो लिंगा रास्ते में उतर गया गाड़ी से और वही हुआ, गाड़ी को रुकवाया गया। लिंगा के बड़े भाई मासा कोड़ोपी, जिन्होंने कोर्ट में हैबियस कॉर्पस डाला था, उनको पुलिस ने पकड़ लिया। लिंगा मेरे पास आया, मैंने तुरंत हाई कोर्ट को फैक्स किया और हाई कोर्ट ने नोटिस दिया छत्तीसगढ़ सरकार को और 2 दिन बाद लिंगा कोड़ोपी के भाई को छोड़ा। लेकिन फिर 1 हफ्ते बाद पुलिस और सीआरपीएफ ने जाके लिंगा को पकड़ने के लिए और मार डालने के लिए उसके गांव पर अटैक किया। लिंगा एक टूटे हुए मकान में सोया हुआ था, पुलिस ने वहाँ नहीं ढूंढा। इस बार पुलिस लिंगा के पिताजी को और 6 और गांव वालों को पकड़ कर ले गई। फिर लिंगा मेरे पास आया, फिर हमने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वगैरह को लेटर्स लिखे। फिर 1 वीक के बाद इसके फादर को छोड़ दिया। फिर अगेन अटैक किया लिंगा के गांव पर लिंगा को पकड़ने के लिए। तो हमने लिंगा से कहा कि देखो ये तुम्हें छोड़ेगी नहीं पुलिस, मार ही डालेंगे, तो तुम दिल्ली चले जाओ। हमने उसे दिल्ली भेजा, वो दिल्ली में आया। यहाँ उसने जर्नलिज्म के एक कॉलेज में हमने उसका एडमिशन करवाया और वो जर्नलिज्म की पढ़ाई पढ़ने लगा। जब वो जर्नलिज्म की पढ़ाई पढ़ने लगा तो छत्तीसगढ़ पुलिस घबरा गई। छत्तीसगढ़ पुलिस को लगा कि एक ट्राइबल जो विक्टिम भी है
और वो बहुत कुछ जानता है, वो एक्सपोज कर देगा सरकार के सारे जो वहाँ डर्टी गेम चल रहा है। तो वहाँ एक स्टेटमेंट पुलिस का आया कि लिंगा कोडोपी एक नक्सलाइट है और आज़ाद जो सीपीआई माओइस्ट जो नक्सलाइट्स की पार्टी है, उनकी डेथ के बाद लिंगा को सीपीआई माओइस्ट ने अपना स्पोक्स पर्सन अपॉइंट किया है और वो दिल्ली में रहकर माओवाद की ट्रेनिंग ले रहा है। वो अमेरिका में जाकर उसने ट्रेनिंग ली है, जबकि लिंगा के पास पासपोर्ट भी नहीं है। और वो गुजरात भी गया है, क्योंकि गुजरात में मेरी फैमिली रहती है, तो उनको फंसाने के लिए ये भी कहा कि वो गुजरात भी गया था ट्रेनिंग लेने। और इस तरीके से और कहा कि उसका संबंध अरुंधति रॉय से है, मेधा पाटकर से है, नंदिनी सुंदर से है, हिमांशु कुमार से है। फिर जब ये खबर अखबारों में छपी और सबने इसकी खिल्ली उड़ाई, तब छत्तीसगढ़ पुलिस ने अपना वो बयान वापस लिया और उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें स्वामी अग्निवेश, प्रशांत भूषण वगैरह और ने पेश किया लिंगा को कि ये लड़का है, निर्दोष लड़का है, पत्रकारिता पढ़ रहा है, ये दिल्ली में है, ये दंतेवाड़ा में कैसे अटैक कर सकता है। उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि इसने वहाँ एक कांग्रेस के नेता हैं अवधेश गौतम, उनके घर पर अटैक किया है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात आई कि लिंगा तो दिल्ली में जर्नलिज्म पढ़ रहा है, वो दंतेवाड़ा में अटैक कैसे कर सकता है, तो पुलिस ने फिर वापस लिया अपना वो बयान और लिंगा ने अपनी पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई उसका ख़त्म होने में जब 1 महीना बचा था, तब दंतेवाड़ा में पुलिस ने और सिक्योरिटी फोर्सेस और एसपीओज ने जाकर 3 गांव में आग लगा दी और 300 घरों को जला दिया। 11th to 16th 11 से 16 मार्च के बीच में ताड़मेटला, मोरपल्ली और तीमापुरम, इन 3 गांव को जला दिया गया। 300 घर जलाए गए, 5 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, 3 गांव वालों की हत्या की गई। लिंगा ने कहा कि सर मैं जाकर के इन गाँव में लोगों से मिलकर आना चाहता हूँ। मैंने कहा जाओ। वो गया और जाकर उसने वीडियोस बनाए, फ़ोटो खींचे और उनको लेकर वो यहाँ आया। 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उन तीनों गांवों के जलाने के घटना की सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर की। अब सरकार घबरा गई और उसको लगा कि लिंगा कोडोपी इन गांव में जाकर फैक्ट फाइंडिंग कर आया है, उसके पास वीडियोस हैं, वो सीबीआई को दे देगा तो सरकार मुसीबत में पड़ जाएगी। जिसके साथ मेरा फेस टू फेस बात हुआ है, जिसका नाम लक्के है, करीब 16-17 बरस की है, उसने मुझे बताया कि मुझे रात भर निर्वस्त्र करके रखा गया था, मतलब नंगे बदन रखा गया था, हाथ पाँव को बांध के। किनके द्वारा? पुलिस द्वारा। पुलिस, एसपीओज, कोबरा, चिंतलनार थाने में। उसके पिता को भी साथ में पकड़ के ले गए थे सर। इसलिए सरकार ने अब एक ट्रैप लगाया और 2 कॉप्स को भेजा लिंगा के पास कि आप ऐसा करो कि ये एसआर वाले पैसा देते हैं नक्सलाइट्स को, तो आप एसआर को फ़ोन करो और उनको बुलाओ और उनको हम पकड़ लेंगे। लिंगा ने कहा मैं इस सब में नहीं पढ़ूंगा, लेकिन वो नहीं माने और उन्होंने ज़बरदस्ती लिंगा की जो बुआ है सोनी सोरी, उनका फ़ोन छीन करके ठेकेदार को फ़ोन किया और उससे कहा कि तुम पैसा लेकर आओ। उसके बाद क्या हुआ, लिंगा अपने घर में था, लिंगा को पकड़ कर ले गए और ठेकेदार को ठेकेदार के घर से पकड़ कर ले गए। लेकिन कहानी ये बनाई गई कि हमने बाज़ार में उस ठेकेदार को, लिंगा को पैसे देते हुए रंगे हाथों पकड़ा। हमारे पास एक टेप है जिस टेप में लिंगा की बुआ सोनी सोरी एक पुलिस वाले मानकर, जो कि किरंदुल पुलिस स्टेशन में एक कॉप है, पुलिस वाला है, वो कह रहा है कि हाँ हमने लिंगा को लिंगा के घर से पकड़ा है। एसआर का जो ठेकेदार है बीके लाला, उसको भी उसके घर से पकड़ा है। और लिंगा का केस दूसरा है,
हाँ, आप मानकर सर हो ना, मानकर सर बोल रहे हो ना? तो बताइए सर आगे क्या करना है, आप तो बुरी तरह फंसा दिए हो। अरे सुनो सुनो, अभी कहाँ हो? मैं बाहर में हूँ, मेरे से आपसे कांटेक्ट हो नहीं पाता, ले दे के मैं आज जो बात करना आज क्लियर कर दो। आप एक किरंदुल थाना के सिपाही रहने के बावजूद भी वहाँ कमल को भी पकड़ के रखे हो। अरे भगवान कमल को पूछताछ किए हैं, वो जो बिल्डिंग में रहता ना, हाँ बिल्डिंग, हाँ, उसको मैंने उसी पर्पज से उसको गए थे तुमको ढूंढने, तुम लोग ले आए उसको, पूछताछ करके छोड़ दिए कमल को। डीके लाला को कहाँ से पकड़े हैं? लेकिन हम लोग घर से लेकिन इस बात का प्रूफ है ना आप लोग के पास? अरे सबके पास है, दुनिया जानता है लेकिन हम लोग घर से उठाए करके, और हिंदू जानता है। और पैसा का तो कोई लेन देन नहीं हुआ है, फिर भी बोले हैं कि हम लोग कुछ नहीं, हैं? कोई कुछ नहीं है, वो जबरदस्ती लाला को फंसाने के चक्कर में उसने है। और लाला भी अपने स्टेटमेंट में ऐसा कुछ नहीं बोला है, वो निकल नहीं जानता ना, आपको नहीं जानता ना किसी नहीं जानता, है ना। उसके मोबाइल में नक्सलियों का फोन आया था, उसको पालनार बुलाए थे, तो वो पालनार गया था, बस गया था, वहाँ से वापस आ गए, उसके बाद घर से उसको पकड़े। आप इस मैटर में आप बिल्कुल निश्चित रहो, ये है कि आप वहाँ पे आपको देखा गया है, इसलिए पुलिस आपका नाम ले रही है, ठीक है। और आप जहाँ पे हो ना वहाँ सुरक्षित रहना, और आप जब बोलोगे तो हम लोग आपको शो भी करवा देंगे साथ के सामने। औरत होने के नाते पूरे मैं तो पूरी छत्तीसगढ़ में बदनाम हो गई हूँ, हैं? नहीं मैडम, ऐसा मत सोचो आप। तो आगे क्या, नहीं तो आप ऐसे, हाँ हाँ हाँ, बोलिए। पानी का पानी हो जाएगा, कुछ दिन और वेट करो बस। कितने दिन लगेगा बताओ? वही बोला ना, 2-3 महीना, अब तो 15-20-25 दिन तो निकल ही गया। तो एक तो फरार भी करवाते हो, ऊपर से मेरे को फिर फोर्स भी आप ही लोग मतलब उनके साथ मिलके ढूंढते भी हो, मैं क्या करूं? और मेरे बच्चे का क्या होगा? तो सुनो, हाँ तो एक काम करें, हाँ एक काम करें, हाँ, आप अरेस्ट हो जाओगे। उसके बाद क्या करोगे मैं अरेस्ट होने से? अरेस्ट होने से आपको रिमांड में भेज देंगे, फिर वही 3 महीने बाद चालान पेश होगा, चालान पेश होने के बाद एप्लीकेशन लगाएंगे जमानत के लिए। हाँ तो वो मेरे को पहले से इतने सारे केस बना दिए हैं, और ऊपर से मैं अरेस्ट हो जाऊंगी तो मेरे को तो पूरी जिंदगी भर आप लोग जेल में चढ़ा दो। तो आप गलती तो आप लोग की है ना मानकर सर, हैं? गलती तो आपने किया, तो मैं सजा किस बेस में भुगतूंगी ये बताओ? इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि कुछ दिन और शांत रहो, फिर अपन सब करवा दें। अब वो एफआईआर तो पहले 150 करोड़ रुपए दे चुका है जिसको, नक्सलियों को, तो उसी मैटर पे छानबीन इंक्वायरी चल रहा है ना। हाँ, तो इसका मजदार हमें क्यों बा? ठीक है, वो एसआर ने 150 करोड़ या कितनी भी दे दिया होगा उन नक्सलियों को, लेकिन इस बीच में हमको मजदार क्यों बनाया गया, लिंगा को और मेरे को, बताइए। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग बाई जब बरी हो जाओगे, आज नहीं तो कल, तभी शांत रहना है, क्योंकि कोई प्रूफ नहीं है। लिंगा को घर से उठाए, लाला को घर से उठाए, इसका कोई प्रूफ नहीं है पुलिस के पास। और पैसे कहाँ से आया, पैसे कहाँ से उठाए हैं बताइए, हैं? तो उसके घर से लेगा है, घर से फिर लेगा है। इतना झूठा मोटा खेल पुलिस क्यों खेल रही है मानकर सर, बताइए। वही मेरे को समझ नहीं आ रहा है, इसमें और माहौल शांत हो जाए कि सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो तो आप कह रहे हो, वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। नहीं वो तो आप कह रहे हैं ना, दूध का दूध पानी का पानी। मेरा आदमी पिछले साल से फंसा है, ये 1.5 साल होने को, बगैर उसका। अगर आज मैं अरेस्ट हो भी जाती हूँ तो क्या गारंटी है कि मैं निकल जाऊँ? मतलब मेरा कोई गारंटी दो आप। गारंटी मैडम केस में तो क्यों है, ये केस ना 3 महीने में चालान पूरा होगा, उसके बाद ना 3-4 महीने ही चलेगा, उसके बाद सब हो जाएगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग हैं, वो एसआर कंपनी खुद सब कुछ छुड़वा देगा, ये तो गारंटी है। सबको ऊपर से लेके नीचे तक खरीद देगा वो। एसआर कंपनी, हाँ, आज एसआर का डीएल डिग्री स्टार्ट हो गया, मालूम है? अरे बाप रे, ऐसा में तो मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो ऐसे अरेस्ट कर लूँगी कब, तो मेरे को मैं कब तक चुपते फिरूंगी, हैं? इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ, बड़े बड़े लोग गिरफ्तार हो गए हैं, ये केस ना ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, तत्काल तुरंत फटाफट सुनाई हो जाएगा, बाइजत बरी हो जाएगी, देखना कोई दम नहीं। ये जो लिंगा का केस दूसरा है वो कह रहा है, ये दूसरा केस क्या है? ये केस है लिंगा सीबीआई को जानकारी ना दे सके, इसलिए लिंगा को पकड़ा गया है।
लिंगा को इस केस में नहीं पकड़ा गया है, वो कॉप स्वीकार कर रहा है। तो ये सरकार ने एक षड्यंत्र बनाकर लिंगा को और उसकी बुआ को फंसाया है, और वो उनके थ्रू मुझे भी फंसाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चूंकि मैं वहाँ के लोगों के बीच, मैंने 18 साल काम किया है, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ और मैं उन लोगों की भाषा जानता हूँ। मैं सबसे पहली शिकायत इस घटना की मैंने ही की थी, तो मैं सीबीआई को बहुत सारी जानकारी दे सकता हूँ। इसलिए वो चाहते हैं कि, और अगर सीबीआई ने सच्ची जांच कर ली तो रमन सिंह की सरकार और उसकी कुर्सी जा सकती है, क्योंकि भारत का संविधान गांव की रक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है, गांव वालों के घर जलाने के लिए मुख्यमंत्री को नियुक्त नहीं किया गया है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन पर ही हमला हुआ है। तो रमन सिंह की सरकार और रमन सिंह की कुर्सी दोनों खतरे में पड़ सकती हैं। इसलिए लिंगा को और मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, सोनी सोरी को भी वहाँ से फरार कराया गया है इन्हीं कॉप्स के द्वारा। उन्होंने कहा तुम फरार हो जाओ और 2-3 महीने बाहर रहो और फिर सब मामला शांत हो जाएगा, क्योंकि कोई सबूत नहीं है, इसलिए तुम बाहर रहो और बाद में आ जाना और सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि कोई सबूत नहीं है। असल में तो ये चाहते हैं कि सोनी सोरी आए और वो, क्योंकि हम ही मदद करते हैं बस्तर वालों की, उनको लगता है कि सोनी सोरी हमारे पास आएगी, हम उसकी मदद करेंगे और वो हमारे साथ सोनी सोरी को पकड़कर एक केस बनाएंगे और उसमें हम लोगों को जेल डाल देंगे। इसलिए वो सोनी सोरी को एक ट्रैप के तहत कह रहे हैं कि तुम वहाँ से फरार हो जाओ। सोनी सोरी एक सरकारी स्कूल में, रेजिडेंशियल स्कूल में सुपरिंटेंडेंट हैं, वार्डन हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, और उनको यही जिस केस में एक कांग्रेस लीडर अवधेश गौतम के घर पर अटैक करने के मामले में सोनी सोरी को नेम किया गया फॉल्सली, झूठा, और उसमें इनको एब्सकॉन्डिंग घोषित किया गया, इनके हस्बैंड को जेल में डाल दिया, इनकी हस्बैंड की जीप को भी ले गए, उस जीप में आज पुलिस वाले घूमते हैं, और सोनी सोरी को उसमें फरार घोषित कर दिया। जबकि सोनी सोरी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में, स्कूल के अटेंडेंस रजिस्टर में रोज़ अटेंडेंस लगाती हैं। अभी पिछले 15 दिन तक उनकी अटेंडेंस लगी हुई है। वो सैलरी ड्रॉ करती हैं गवर्नमेंट से, सैलरी आती है उनके बैंक अकाउंट में, और उनको फरार कह रही है सरकार, जबकि वो सरकारी नौकरी कर रही हैं। तो सरकार वहाँ पूरी तरह से झूठ बोल रही है। वो फंसाना चाहती है लिंगा को और उसकी बुआ को, और उसकी बुआ जिसको फरार घोषित कर दिया गया, वो एसपी से मिली, वो डीआईजी से मिली, वो कोर्ट जा रही है, वो स्कूल जा रही है अपने, और उसको फरार कह रहे हैं। और ये एसपी और डीआईजी लगातार उससे निगोशिएट कर रहे थे कि तुम अपने भतीजे लिंगा को दिल्ली से वापस बुलाकर हमें सौंप दो, तो हम तुम्हारे सारे केसेस बंद कर देंगे। अभी भी उन्होंने इसको जब फंसाया है एसआर वाले केस में, तब भी कहा कि अगर तुम अपना फ़ोन हमें दे दो यूज़ करने के लिए, तो हम तुम्हारे पुराने केसेस सारे माफ़ कर देंगे, हमें बस एसआर वालों को फंसाना है, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। तो इस तरीके सोनी सोरी एक गवर्नमेंट टीचर हैं जिनको ये लोग इसलिए फंसा रहे हैं कि उसने लिंगा की हेल्प करने की कोशिश की थी। बिल्कुल, लिंगा ने दंतेवाड़ा जब लिंगा जा रहे थे तो लिंगा को पूरी उम्मीद थी कि उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा या मार दिया जाएगा। इसलिए लिंगा ने मुझसे कहा था कि मैंने जो वहाँ पर शूट किया है वो मैं आपको देकर जाता हूँ, वो फुटेज मेरे पास है और वो मैं कुछ पत्रकारों को दे रहा हूँ, और मुझे आशंका है कि मुझे भी गिरफ्तार किया जा सकता है झूठे मुकदमों में। और मैं चाहूँगा कि जिन पत्रकारों को मैं वो दे रहा हूँ वो मेरे जेल जाने के बाद उसको सीबीआई को सौंप दें,
ताकि सीबीआई ठीक से जांच कर सके। अभी तो सीबीआई ने जा कर के नक्सलाइट्स के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज कर ली है कि ये गांव नक्सलाइट्स ने जलाए हैं, जबकि बस्तर का बच्चा बच्चा जानता है कि ये गांव सीआरपीएफ, पुलिस और एसपीओज़ ने जलाए थे। सीबीआई को जाकर लोगों से बात करके एफआईआर लिखनी चाहिए थी। एटलीस्ट विक्टिम्स की तरफ से एफआईआर लिखवाई जानी चाहिए थी। लेकिन दुख की बात है कि सीबीआई ने जाकर पुलिस वालों के कहने से एफआईआर लिखी है। देखिए, हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं कि उनकी एंटिसिपेटरी बेल हो जाए, और नहीं मालूम कि उसमें हम लोग कितना सफल होंगे, लेकिन हम कानून मानने वाले लोग हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि कानूनी रास्ता ही निकले और उनको एंटिसिपेटरी बेल मिल जाए। वो निर्दोष हैं, हम पूरी तरह से जानते हैं। हम एक सोनी सोरी के बारे में नहीं, हमने बहुत सारे बस्तर के निर्दोष लोगों को झूठा फंसाया जाते हुए देखा है। हमें वहाँ की सरकारों का आदत और तौर तरीक़े मालूम हैं, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि सोनी सोरी को अग्रिम ज़मानत एंटिसिपेटरी बेल मिल जाए। हमने कोपा को देखा है झूठा फंसाया जाते हुए, लिंगा को देखा है, सुखनाथ को देखा है, करटम जोगा को देखा है, विनायक सेन को देखा है, अजय टीजी को देखा है। किस तरीके से वहाँ जितने भी बोलने वाले लोग हैं, जो लोगों को की आवाज़ को आगे बढ़ाते हैं, जो डेमोक्रेटिक स्पेस को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन सब को फर्जी मुकदमे बनाकर, फर्जी केस बनाकर जेलों में डाल दिया गया है। इस समय लोगों को के पास कोई व्यक्ति नहीं है जहां जाकर वो अपनी तकलीफ़ कह सकें, अदालत तक जा सकें, डेमोक्रेटिक टूल्स यूज़ कर सकें। बिल्कुल वहाँ डेमोक्रेसी ख़त्म कर दी गई है। हम कोशिश कर रहे हैं कि फिर से वहाँ डेमोक्रेसी को रिवाइव कर सकें। देखिए, वहाँ उनके जो सोनी सोरी के ऊपर इस तरह के केसेस लगाए गए हैं कि एक तो ये कि कांग्रेस नेता के ऊपर हमला हुआ, तो सोनी सोरी जो कि आश्रम अधीक्षिका हैं वो भी उसमें थी, और फिर कहीं थाना बिल्डिंग को उड़ाया नक्सलाइट्स ने, उसमें भी सोनी सोरी थी, ऐसा केस बना दिया है पुलिस ने। फिर कहीं कोई तहसील बिल्डिंग को नक्सलाइट्स ने नुकसान पहुंचाया, उसमें भी सोनी सोरी थी, ये भी पुलिस ने उनका नाम लिख दिया। फिर कहीं नक्सलाइट्स ने किसी ट्रक को जलाया, उसमें भी सोनी सोरी थी, ये भी पुलिस ने लिख दिया। इस तरीके से 7-8 केसेस में सोनी सोरी का नाम लिख दिया है, जिससे एक बार फंस जाए तो कभी भी ना निकले ज़िंदगी भर। और उसमें अगर आप उनके कागजात देखें तो आप देखेंगे कि वही 6 लोग आज की जो घटना है उसके बारे में भी जो बयान दे रहे हैं, जहाँ जहाँ कटिंग हुआ है, जहाँ नाम जिस सीक्वेंस में है, 6 महीने बाद की कोई इंसिडेंट है, उसमें भी वही 6 लोग हैं, उसी सीक्वेंस में नाम है, वही वर्ड टू वर्ड उनकी टेस्टिमनी है, वही कटिंग अगर कहीं है तो वही कटिंग वहाँ भी है। कट कॉपी पेस्ट करके वो सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए हैं सोनी सोरी के ख़िलाफ़। कोई भी बच्चा भी समझ सकता है कि ये सब टेबल वर्क है सोनी सोरी के ख़िलाफ़। वो तो रोज़ स्कूल में पढ़ा रही है, कलेक्टर से मिल रही थी, एसपी से मिल रही थी, उसके ऊपर सारे फर्जी मुकदमे लगा दिए गए हैं। सोनी सोरी के 3 बच्चे हैं और सबसे छोटी उनकी 5 साल की बेटी है, एक 7 साल का की बेटी है, एक 9 साल का बच्चा है। वो बड़े बच्चे दंतेवाड़ा के सरकारी हॉस्टल में पढ़ते हैं और छोटी बेटी उनकी गांव में ही है, और उनके पति जेल में हैं। उनका भतीजा लिंगा भी जेल में चला गया है। वो अकेली महिला है जो सारी इस सरकार से संघर्ष कर रही है। मैं आपको एक और घटना बताऊं। सोनी सोरी ने मुझे थोड़े दिन पहले फ़ोन किया और उसने कहा कि सर 15 अगस्त को नक्सलाइट्स आए थे मेरे आश्रम में, और उन्होंने कहा कि ये तिरंगा झंडा उतारो, हम यहाँ काला झंडा फहराएंगे। तो सोनी सोरी ने कहा कि मैं तिरंगा झंडा नहीं उतारूंगी, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे शहीदों ने कुर्बानी दी है, भगत सिंह जैसे लोगों ने कुर्बानी दी है, मैं ये तिरंगा झंडा नहीं उतारूंगी।
और नक्सलाइट्स के साथ उसकी बहुत लड़ाई हुई। उसने जान पर खेलकर तिरंगे झंडे की उस दिन इज्जत की रक्षा की। और दूसरे गांव में लिंगा कोडोपी ने भी उसी दिन 15 अगस्त को एक स्कूल बिल्डिंग पर नक्सलाइट्स ने काला झंडा लहरा दिया था। लिंगा कोडोपी ने वो काला झंडा उतारा, फेंक दिया और तिरंगा झंडा चढ़ा दिया और नक्सलाइट्स को भी डांट कर भगा दिया। ये लोग जो तिरंगे झंडे की इज्जत के लिए वहाँ नक्सलाइट से जंगल में, मुझे फ़ोन किया इन्होंने कि सर हमने ठीक किया ना। मैंने कहा तुम लोग अकेले कितने बड़े खतरों से जूझ रहे हो, ये लोग तुम्हें मार देंगे। ये लोग जो तिरंगे की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, आज वो अपराधी और जो लोग तिरंगे के नाम पर वहाँ बलात्कार कर रहे हैं, आदिवासियों के घर जला रहे हैं, वो लोग देशभक्त, असली देशभक्त ये हैं। हमें इन्हें सैल्यूट करना चाहिए जो जंगल में रह करके नक्सलाइट से लड़े और जिन्होंने तिरंगे झंडे की इज्जत की। आज वो छुप रहे हैं, जेल में हैं, फरार घोषित कर दिए गए हैं। बहुत दुख होता है। शायद ये हम लोगों का क्लास कैरेक्टर है कि जो हमारे जैसे अंग्रेज़ी बोलने वाले और मिडिल क्लास के अगर कोई लोग जेल में चले जाते हैं तो हम लोग बहुत डर जाते हैं और हम लोग एकदम ज़ोर से सामने आ जाते हैं। और मीडिया भी चूंकि मिडिल क्लास की है इसलिए वो भी उस इशू को बहुत प्रोमिनेंटली रेस करती है। लेकिन अगर वो आदिवासी हो, वो अंग्रेज़ी नहीं बोलना जानता है, वो गरीब है, वो दलित है, वो गांव में रहता है, तो फिर उसको उतना मीडिया अटेंशन या मिडिल क्लास का अटेंशन नहीं मिलता। ये एक बहुत दुख की बात है और हम लोगों के लिए शर्म की बात भी है कि जो असली ज़मीन पर लड़ने वाले लोग हैं, कोपा ने 39 गांवों को दोबारा रिहेबिलिटेट किया था, दोबारा बसाया था और उसमें नक्सलाइट्स को भी कहा था कि तुम बंदूक लेकर नहीं आओगे। उसने उन 39 विलेजेस को जोन ऑफ नॉन वायलेंस, जोन ऑफ पीस डिक्लेयर करा था। वो आदमी आज जेल में है। तो जो हमारे लोग जो ज़मीन पर डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं वो तो बिल्कुल अनसंग हीरोज़ हैं, जेलों में सड़ रहे हैं, कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। कैंपेन के नाम पर हमारे साथ कुछ 10-20 लोग हैं देश में और दुनिया में जो जानते हैं इन चीज़ों के बारे में, वो साइन भी कर देते हैं पिटीशंस पर, लेकिन कोई कैंपेन जैसी चीज़ तो दिखाई नहीं देती।